है? ओके, नाउ विल कंटिन्यू फर्दर। देखते हैं नेक्स्ट इज व्हाट होमवर्क था। एनीथिंग? या तो होमवर्क क्वेश्चंस दिए गए थे आपको। लेट्स डू दैट। दिस वन वाज द फर्स्ट। When n1 is great, n1 is less and n2 is greater. As usual means suppose bahar air hai and lens is made of the denser material. It will behave normally. It will be behaving like convex lens. Focal length will be positive. In second case, when n1 is equal to n2, when both are equal, then we'll check in the lens maker's formula. लेंस मेकर फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पर। ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 1 - 1, इट विल बी 0। 1/f will be 0, f will be infinitive, so rays will go undeviated. ये वाली जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो तो अनडिविएटेड चली जाती। अदर्स रे विल चेंज इट्स पाथ, तो यहाँ पर will not change because refractive indexes are equal. Focal length is found to be infinitive. In case number 3, यहाँ पर देखिए n1 greater, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे n1 greater, this will be less than 1 यहाँ पर, और this is -1, तो और ये दोनों ये पॉजिटिव आ जाएंगे, तो f will be negative। थर्ड केस में, केस नंबर 3 में, if नहीं n1 greater than n2, then from lens maker formula f will be negative. Negative means it will start behaving as a concave, ऐसा कहीं ऐसे आएगा, देखो ठीक है। यहाँ पर फोकल पॉइंट मिलेगा उसको, इसमें यहाँ मिलेगा प्लस मेन फोकस। गॉट इट? बोले इसमें कोई डाउट है? लेंस को जब हम लोग डेंसर मीडियम में डाल देते हैं, denser than what? Denser than the refractive index of its own, it will behave in other way. Convex will become concave and concave will become convex. Getting? All right or not? Yes. Yes. This is very important. Boards में आया था ये क्वेश्चन अब। Okay. We'll see further. Continue with the lenses only. Let's do next one. नोट कर लो इसको। Magician during a show makes clean lenses with n is equal to 1.47 disappear in a trough of liquid. That is, what is the refractive index of the liquid and
Could the liquid be water? So in this case, if refractive index of liquid is equal to that of the lens, then f will be infinite. Then rays will go undeviated. We will not come to know whether lens is placed there. It will disappear, and it cannot be water because refractive index is 1.47. It has to be other liquid. Let's see what is the answer given. The refractive index of liquid must be equal to 1.47 in order to make the lens disappear. This means N1 is equal to N2. This gives 1 by f is equal to 0 or f is infinite. The lens in the liquid will act like a plane sheet because it will not be changing the path. Even it will not be appeared because rays are moving undeviated. No, the liquid is water. Liquid is not the water. It could be glycerin because that is having the more refractive index than water. ठीक है? So these are the solid example. You have to keep an eye on that. Sometimes they are asked. This was done. What about the question? Answer of this question? कितना है इसका आंसर? फर्स्ट केस में पहले, then second case we'll see. बोलिए क्या आंसर आ रहा है? Do it now quickly. 10 centimeter. कितने? Focal length 10 centimeter. Okay, what about others? दोनों इक्वल दिए. In this chapter, don't convert your centimeter into meters. All answers are going to be in centimeters. तो इसमें देखिए आप ध्यान से, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है तो फोकल लेंथ r के बराबर होती है. f इज इक्वल टू r if n is equal to 1.5. This is the conclusion. Got it or not? जो जितनी फोकल लेंथ है उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, provided refractive index is 1.5. So this is the conclusion drawn here. अगर मैं इक्विकॉन्केव देता यहाँ पर, in case of इक्विकॉन्केव, R1 will be negative, this will be positive, माइनस ये प्लस, ये भी माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस आता है, ये माइनस आता है, माइनस आता है, तो इक्विकॉन्केव में -10 आ जाता है. Are you convinced? Is it okay or not? So these results, if you remember, it will save your time.
or further solving? Do this question now. इसको फास्ट करो. तो ये भी होमवर्क दिए थे ना आप? Yes. सर कितना मेरा है? तो सर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. Plus. यस सर. Okay. Any convex lens kept in air, है ना? If nothing is mentioned, it is in the air or vacuum. If it is in the other medium, they will give you surrounding medium is water or glycerin or something else. So in that case only you have to change the formula. Otherwise, it is normal in air. Any lens, any convex lens kept in air or vacuum or in rarer medium will have positive focal length. हमेशा कॉन्वेक्स की पॉजिटिव आनी चाहिए रेयर मीडियम में. और देख यहाँ पे क्या लिया आपने R1. ओके, एंड तो सेम है. R1 विल बी हाउ मच? ऐसे फ्लैट ऐसे लिया या दूसरी तरीके से दूसरा से लिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ता. देखो ऐसे ले लो, एक मिनट, क्या ऐसे ले, उसको चेक कर लेना बाद में, सेम आंसर आएगा. पहले हम ये वाले इससे लेते हैं. R1 इज इनफाइनाइट, R2 is negative 10. So 1 by f is equal to n minus 1 by R1 minus 1 by R2. यहाँ पे देखो f is equal to 2r, प्लेनो कॉन्वेक्स में 2r आ रहा है. If n is equal to 1.5, that's what is the conclusion drawn here. Radius of curvature से डबल आ रहा है, because one surface has gone. Both the surfaces are individually converging the rays, incoming rays. देखो यहाँ पर जैसे ये लेंस है, we can see it here. यहाँ से रेज आ रही, ये कन्वर्ज करेगा उसको, फिर ये फर्दर कन्वर्ज करेगा. ऐसे दो बार कन्वर्जन होता है. If one of the lens is missing, this part or this part, और this part missing है तो ऐसे आएगा, और this part missing है तो ये आगे जाके ऐसे ही आएगा. Because of one of the curved surface is going, therefore its converging power is decreasing and focal length is increasing. Focal length is increasing because it is able to converge less. कम कन्वर्ज कर पा रहा है वो एक सरफेस, एक कर्व सरफेस जाने से. अच्छा, if we take it like this, then also it will come 20. How? Now R1 will be positive 10, and this will be infinite. यहाँ पे 1 by 10 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा. Again it will be same thing. 0.5 by 10, that is 1 by 20, that will be f will be 20. Clear? Whether you keep it one way or you keep it other way, या तो ऐसे रखो या ऐसे रखो, कैसे भी रखो, focal length will not change.
Got it? Yes. देखो, find the focal length of concave or convex lens of refractive index 1.5 and radius of curvature 10 and 20 centimeter. इसका आंसर क्या आएगा? What the answer coming? Can you solve it quickly? Tell me the answer first. Sir, 40 centimeter. Plus or minus? Plus or minus? Minus 40? Sir, plus है. R1 क्या लिया आपने? R1. तो R1 10 लिया था. R1 10. R1 10. But R1 20 होना चाहिए ना. R2 10 होना चाहिए, है ना? देखो, R1 माइनस 20 होना चाहिए और R2 माइनस 10 होना चाहिए. दो मिस्टेक करने से फिर आंसर सही, फिर वो न्यूट्रलाइज हो गई इधर. देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इफ यू सी द डायग्राम, ये जो है R1 will have bigger radius. तो this should be R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है. ये दूसरी वाली जो सरफेस है उसका 10 है. तो यू हैव टू डिसाइड R1 and R2 प्रॉपरली. इसमें कौन सा R1 होगा, कौन सा R2 होगा, वो आपको ठीक से डिसाइड करना पड़ेगा. अदरवाइज थिंग्स विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो देखो, ऐसे लेंस है, अंदर वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बिगर दिख रहा है, अंदर वाली सरफेस का 1 का 2 का छोटा दिख रहा है. तो 1 हैज टू बी -20 एंड बोथ आर नेगेटिव. दोनों इस तरफ ही है. बट इफ यू टेक दिस R1 माइनस 10, ऐसा तुमने दोनों प्लस ले ली थी क्या? ये -10. सर, ये ये minus- उल्टा वाला लिया था मैंने, जो हाँ, इन्वर्टेड वाला. उल्टा वाला लेंगे ना तो माइनस आएगा. यहाँ पे आएगा वो 40. इट विल नॉट बी मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज, बट इट विल एक्ट एज ए, आपका जो है कॉनकेव जैसा रिजल्ट आ जाएगा. तो यू डोंट हैव टू. इसमें एक काम कर सकते हैं, किसी को भी R1 ले सकते, मतलब पहले वाले को R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया,
साइन कन्वेंशन तो माइनस माइनस लेना पड़ेगा दोनों में। तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, -40। इसका मतलब आपने R1 R2 इंटरचेंज कर दिया, इसलिए माइनस आ रहा है वो। मैग्नीट्यूड विल नेवर चेंज, मैग्नीट्यूड 40 मतलब 40 ही आएगा, फिर माइनस आ सकता है। आपका माइनस क्यों नहीं आया फिर, बोलो क्या मिस्टेक? सर मैंने लेंस इन्वर्ट किया था, मतलब इन्वर्टेड था, मतलब लेंस समझ। तभी भी भाई, तभी भी दोनों प्लस आएंगे, तभी भी वो फोकल लेंथ विल नॉट चेंज, फिर भी माइनस ही आएगी। दोनों दोनों अगर आपने इन्वर्ट कर दिया तो ये प्लस, यहाँ पे ये प्लस 1/20, ये पहले वाली सरफेस की छोटी होनी चाहिए, तो एक्चुअल में दैट शुड बी +1/10। दूसरे वाले की बी प्लस होगी, वो ऐसा आएगा। ठीक है, इन्वर्ट करने से भी इफ यू डोंट टेक द प्रॉपर वन, अच्छा इन्वर्ट करने से पहले वाले की 10 पहले वाले की 10 आ रही, अच्छा ऐसे लिया, ओके लेट्स सी। हाँ, ऐसे रखने से दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 20। अच्छा ओके, फिर मिस्टेक नहीं होगी। हाँ ठीक है, ठीक है। बट कभी ऐसे माइनस आ गया ना, इसका मतलब हमने R1 R2 इंटरचेंज कर दिया है, एंड मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्लियर टू एवरीवन? यस ओके, देखो अगर ये सेम क्वेश्चन जो ऊपर किया, उसमें इफ आई डोंट मेंशन दैट नेम ऑफ द लेंस, if refractive index is 1.5 and radius of curvature is 10 and 20, find the focal length of all possible lenses। तो इसमें 4 लेंसेज बनेंगे, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, और एक ऐसा बनेगा, है ना? तो पेयर में आंसर आएंगे। अगर तुमने डबल कॉन्वेक्स लिया, उसका 40/3 आया, तो दूसरे का -40/3 आएगा। कॉनकेव कॉन्वेक्स लिया, उसका 40 आया, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव का -40 आएगा। पेयर में दो दो के आंसर आ जाएंगे, एक में प्लस एक माइनस। तो इफ नथिंग इज मेंशन, तो 4 पॉसिबिलिटीज है इन दिस के लिए, डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए गुड क्वेश्चन कैन बी, छोड़ सकते हैं इसको। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन and competitive examination. Can you do it here? If the focal length of double convex lens is 10 centimeter in vacuum and its refractive index is 1.5, what will be its focal length in water of refractive index 4/3? Very important question. Can you do it now? यस Okay.
Hmm. One by R1 minus 1 by R2 is coming 1.5. ये 1.0.5 इधर आ जाएगा. We'll make it 5. So 1 by R1 minus 1 by R2, as it is, we can put it 1 by 5 in the next. This is the first case. Now second case, 1 by F dash. वाटर में निकालनी है. यहाँ पे क्या आएगा, NG अपॉन NW माइनस 1. वाटर के अंदर सराउंडिंग मीडियम में वाटर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, N2 upon N1. 2 is that length, N1 is the surrounding medium. Four by 3 minus 1 into 1 by 5. ये ऊपर हमने 1 by R1 minus 1 by R2 की वैल्यू 1 by 5 निकाली है. यहाँ पे पुट कर देंगे दिस. सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है. Focal length is becoming 40 centimeter. 4 times. 4 times हो गया exactly. Could you get it? Yes. Yes, sir. सराउंडिंग मीडियम डेंसर हो गया. सॉरी. तो उसकी एक्चुअल में सॉरी सॉरी इन एक मिनट. Note down just. If we are increasing the refractive index of surrounding medium, उसकी कन्वर्जेंस कम होती जा रही है. अगर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, if refractive index becomes same, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फोकल लेंथ वुड हैव बीन इन्फिनिटिव. जब दोनों सेम होते हैं, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है. जैसे जैसे डेंसर मीडियम, सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे, तो it will be losing its converging quality. Focal length will increase, power will decrease. Sometimes focal length will become, after some time, focal length will become infinitive. Power will be zero. Power focal length का रेसिप्रोकल होता है. अगर तुमने और बढ़ा दी सराउंडिंग मीडियम की, तो दे विल स्टार्ट डाइवर्जिंग. कॉनकेव बन जाएगा वो. इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स कॉनकेव. If you increase the refractive index of surrounding medium, done. Clear to everyone?
Anything you want to ask here? Are you there? Yes. No problem. No, sir. Okay. This is also important question. देखिए इसको करके जल्दी से इसको do it. Nine point eight. Textbook का 8 question. Chapter number 9. Sometimes convex lens is indicated like this. Rays ऐसे आके ऐसे होती converge होती. Some books indicate converging lens by these two arrows drawn at the tip. Solve it quickly. Though these rays were converging at point P, आपने लेंस लग दिया यहाँ पर 12 centimeter before. Now, what will be the new? Where will be the new convergence point? I mean, this will act as the object, but virtual object जैसा behave करेगा. How much U we should take? बोलो U कितना ले? Sir, 12 Plus की minus? plus Y plus? Y the plus? right side color. Okay. Virtual object. So right side में मतलब in the direction of incident rays की direction में इधर ही है. ये भी इधर है, ये भी इधर है. 12. We can solve it 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. So 1 by V is 1 by F plus 1 by U. 1 by 20 plus 1 by 12.
7.5 ये कन्वर्ज हो जाएंगी यहाँ पर ऐसे, पहले I will be further convergence हो जाएंगे ना, they will be coming closer, they will further converge at 7.5 centimeter. Clear? Second part, can you do your own? Yes, sir. Lens is concave, what will change now? इसमें क्या change होगा? Will the U change? ये So you will आएगा not. कि change? You will remain same. Concave lens F will be minus 16 centimeter. तो डाइवर्ज हो जाएंगे ऐसा कुछ, जब हम ऐसा लेंगे ना लेंस डाइवर्ज हो जाएंगे, ऐसा कहीं पे दूर चली जाएंगी, तो आंसर विल बी 48 सेंटीमीटर। सेकंड का आंसर 48 आना चाहिए। तो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ओनली दिस इज द ओनली क्वेश्चन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर टू एवरीवन? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में U is positive, done? Yes. Yes, sir. Do complete second part, otherwise you will miss it. ये अलग क्वेश्चन कर सकते हैं। This question is important for JEE and NEET also, apart from your board's examination. इसको एक काम कर सकते, थोड़ी देर के लिए इसको बात करनी, कैन यू अज्यूम द पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो देन थिंग्स विल बी इजियर, रे डायग्राम विल बी इजी टू ड्रॉ, कैलकुलेशन विल बी सेम। पहले फर्स्ट लेंस से, from the first lens you get the value of you find the location of image made by the first lens. That image will act as a object for the second lens. It may be real object or virtual object, we don't know. अगर इसकी इमेज बीच में आ गई, देखो यहाँ पे आ गई, इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसकी इमेज इधर आ जाए तो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आ गई तो रियल ऑब्जेक्ट, और राइट साइड में आई तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जैसा ऊपर था।
suppose ऐसे image form हुई. Now this image will act as a virtual object for this. ऐसा ही तो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर. बस ओनली थिंग सेकंड पार्ट जैसा क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है. इट विल कम समवेयर हियर. फिर उसके लिए वो u हो जाएगा. u विल बी पॉजिटिव. फिर u डैश कर लो. v डैश निकाल लो इसका. फिर इसकी जो इमेज बनेगी, सपोज अभी इसकी इमेज यहाँ बनी. फिर उसके लिए ये डिस्टेंस. फिर उसके लिए डिस्टेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट. फिर इसकी फाइनल इमेज जैसे निकालनी पड़ सकती है. तो जो ऊपर क्वेश्चन किया है, दैट क्वेश्चन इज नाउ कंबाइंड. सिंगल लेंस के लिए किया, अभी यू हैव टू यूज इट फॉर दिस लेंस आल्सो, फॉर दिस लेंस आल्सो. सबसे पहले इमेज लोकेशन फॉर द फर्स्ट लेंस बताइए. चलिए, कुछ अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ. फर्स्ट लेंस कहाँ पर इमेज बना रहा है. इफ यू कैन डू दैट and then you can just watch carefully. You don't have to further calculate anything. एक पार्ट कर लो, इमेज मेड बाय द फर्स्ट लेंस. फटाफट निकाल के बताओ. B is Image equal to position. 7.5. कितना? 7.5. 10.5 आ रहा है. नहीं किया है ना हमने क्वेश्चन क्लास में. ये क्वेश्चन तो किया था. लेंस डबल कॉन्वेक्स है भाई. f is 10, u is -30. u कितना लिया? -30 या +30? Minus. f + 10. चेक करो. डू इट अगेन कैलकुलेशन. v जो है आपने मिस्टेक की है, वही निकालना. We did this question in the class जब इंटरचेंज किया था ना u and v को. आ गया सबका. इमेज लोकेशन इन केस ऑफ फर्स्ट लेंस. लेफ्ट साइड में वो लेंस पहला 15 लेना है. सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर. नाउ इस लेंस के 15 आएगा. देखो, ये फर्स्ट लेंस, ये सेकंड है, ये थर्ड. ठीक है. व्हाट नेक्स्ट? सर ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस. फॉर सेकंड लेंस? u डैश 10 कितना? plus 10. यस. ये 5, ये गैप भी है ना 5 सेंटीमीटर का, तो वो माइनस करना पड़ेगा. v डैश निकाल लो. गैप जो है वो माइनस करना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? ये 15 आ रहा है ऐसा. यस सर. ये गैप 5 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस 10 आ जाएगा.
That's why I did it. सर v infinite आ रहा है image If distance you put उसके बाद थर्ड पार्ट अभी थर्ड लेंस के लिए कैसे भी अभी क्या होगा थर्ड लेंस के लिए so object coming from infinity third lens के रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी ऐसे आएंगे लिए कुछ yes ऐसे जा रही थी बट ऐसे हो जाएंगी डाइवर्स हो जाएंगे ऐसे था तो यहाँ से ऐसे हो जाएंगे लाइक दिस तो अभी थर्ड लेंस के लिए यू कितना होगा हर थर्ड लेंस इसको डबल डैश कर लेते हैं थर्ड लेंस के लिए यू कितना होगा so infinity रेस पैरेलल आ रही ऐसे तो इनफाइनाइट से आ रही है इसका मतलब इसका 30 सेंटीमीटर वी डबल डैश निकाल लो वैसे तो निकालने की जरूरत ही नहीं है जब रेस पैरेलल आती है तो कहाँ पे मिलती है वो focal Focal point point. फोकल पॉइंट पे मिलती है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है वैसे क्योंकि दूसरा टर्म तो जीरो ही होने वाला है ना therefore 30 centimeter right of last lens थर्ड लेंस कहाँ पे इमेज बनी 30 सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द थर्ड लेंस क्लियर yes sir anybody has any doubt in this shall I show you with the ray diagram फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड एंड थर्ड पार्ट बाद नॉट ट्रिक पार्ट एक्चुअली है ना और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है कि ये इसके फोकल पॉइंट पे जा रही थी देखो ऐसे रेस कन्वर्ज होने के बाद इसका फोकल पॉइंट ये 10 है ये भी 10 है तो रेस हेडिंग टुवर्ड्स फोकल पॉइंट विल बिकम पैरेलल इन द कॉनकेव देखो यहाँ पर ये ऐसे रेस है they are going to meet at 30 but this point happened to be focal point of the second lens because 10 है focal point भी 10 और ये 10 पे जा रही थी तो they were heading ऐसे इधर से भी ले सकते हैं ऐसे तो they were heading towards focal point so they will become parallel now अब इससे पैरेलल आ रही है इसके फोकल पॉइंट पे जाके मिलेंगे इसके फोकल पॉइंट पे थर्ड पार्ट भी नहीं करना था पैरेलल लेंस कहाँ पे मिलती है फोकल पॉइंट पे लेंस के और फोकल पॉइंट से आती हुई दिखती है कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो दे विल बी जस्ट मीटिंग कन्वर्जिंग एट द फोकल पॉइंट तो ये भी नहीं करना था थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट का थोड़ा क्लू मिलता तो वो भी नहीं करना था फोकल पॉइंट की तरफ इन केस ऑफ कॉनकेव रेज हेडिंग टुवर्ड द फोकल पॉइंट विल बिकम पैरेलल क्योंकि पैरेलल ऐसे आती है तो ऐसे डाइवर्ज हो जाती फोकल पॉइंट से आती हुई दिखती है तो रिवर्स इज आल्सो ट्रू इसको थोड़ा सिंपल करना है बोर्ड लेवल के लिए तो ये वाला लेंथ हटा दो तो क्या आंसर होगा
infinite. It can be, this question can be changed. Keep the two lenses only. अच्छा ये लेंस हटा देंगे तो if we remove the middle lens, then what will change? So this point will act as a real object for this. ये जैसे आएंगे यहाँ पर कितनी थी 15. अच्छा इसकी फोकल पॉइंट पे आ रही, ऐसे आ रही है. They will go undeviated then. I mean इसके ऑप्टिकल सेंटर पर, ऑप्टिकल सेंटर पर they will go undeviated. So image will be formed at optical center. Optical center of the second lens. ठीक है. Shall I give you similar question to the one more question for practice? In that we can take the two lenses in place of 3. Calculation will become half. इसमें कोई डाउट है बोलो? No, sir. Actually ये यहाँ पे आना चाहिए था, इस यहाँ पर diagram. It should have been here because 5 and 10, 15 है. We have shown it. We should have shown like this. Anyway, no problem. We are not changing it. We have to take till the rays comes out of the system, है ना, जब तक system से बाहर न निकल जाए. If we take both sides, it will be like this. Now they are going out now as it is. The final image is here. Till then you have to take the image formation. देखो ये हम next class में करेंगे. But similar question I want to give you, which was asked in JEE examination. ये वाला है क्या? उसमें दो लेंस, one lens they are removed. Only they kept it two lenses. Diverging lens with the magnitude of focal length 25 cm. Diverging means concave. Is placed at distance 15 cm for converging lens of focal length 20. एक diverging है, एक converging. Beam of parallel light falls. अच्छा. On the diverging lens. ऐसे. इस तरह से आएगा. The final image you have to find out. 4 options are given. One of the options is right option. Just do it. It will have less calculation as compared to previous question, but you have to be very careful in solving it. Okay. 8 point. With this we can wind up. You have to show all the calculations properly. Solve करके भेजो उसको. Ending now. Okay.